And we are live. Great. So, Assalamu alaikum, Qasim, Talha, and Hafsa, and Hiba to you too, even though you are silent. I'll make sure that I keep on bugging you throughout the whole hour. So, yeah, thank you so much for taking out the time. Thank you so much for being here. मैं थोड़ा सा background ये दे दूं कि हिबा और हफ्सा reached out to me talking about the opportunities at your company and you know how invested you are in the idea of diversity and inclusion and that was amazing because usually it's very rare that a company's female reached out to me and tell me that the company is you know interested in adding more women to their team. So I wanted to make sure that you guys talk about your company as well as we have Hafsa here who's going to talk about her experience with remote base. Yeah, thank you so much. Thank you so much for having us, Faiza. And I'd like to add that you're doing a brilliant job. आप हमारा जो है ना बहुत like from our perspective बड़ा काम आसान करनी है if you can help empower and women in Pakistan and get them into tech तो हमारे लिए तो उससे बेहतर I think कोई चीज़ हो ही नहीं सकती. So thank you so much for having us and thank you for all the work you're doing. You're very kind. You're very kind. Thank you. So let's start with a bit of a background. I would really like you guys to talk a bit about yourself, about your education, experience, anything that you would like to share. Maybe we can start with Hafsa. Yeah. So hi Faiza. First of all, thank you for being here and thank you for giving us this opportunity and platform. And I would like to appreciate you first that whatever you are doing that is very extraordinary, and I can all see you as a superhuman because it is not something easy having being a woman and doing all this stuff, creating in such a great impact at your end. And uh, telling about myself, I have graduated from UET in 2020. And after graduating, I joined Remote Base. So at a Remote Base, I'm working as a developer, but being as an individual, I'm back in 2016 when I have to join a university for an undergrad degree. I wasn't sure about my career paths and career lines. So I joined. My mother was of the idea that I'm quite good in computers because I used to fix computers in my childhood, and so mother was idea that I should pursue computers as a degree. So when I went into, I got a admission in computer science at UET and started studying. But in the first 2 years, I have ignored my studies for some reasons, and I got distracted. And then after 2 years, I got have a self-realization that what I am doing with my life. So this made me realize that I shouldn't be wasting my life like this, because after 2 years of graduation, what will I be doing? And I have no idea about that. So in the summer, I started working out on my development skills, and I found development interesting for myself as it solves problems and it gives you a sense of achievement. So I found development quite interesting, and I started pursuing that in that way. So after my I did an internship in that summer, and there was my mentor who taught the whole development and everything else. As then I like then then I said after doing the internship, when I've been back to my academic routine, I found that we are not having enough opportunities as a enough learning opportunities, enough learning exposure for ourselves. So I started creating opportunities for myself. I did many freelancing projects and created an impact. And in the last year of my university, I started a part-time job at eSketches. And this is a very surprising thing that at most of my opportunities, I'm the only female developer there. So this is one of the most highlighted cause that it led me felt that how understaffed we are, we're having women in tech, and
I always wanted to see other women with me, so we can like more women excelling. Like women have potential, but we casually don't get to see more women. So this is one of the fact that I wanted to be a part of this empowering women in tech, and that's all from my side, I think. Thank you, Hafsa. And this is not a local problem. This is everywhere. The pipeline issue with women in tech, and then not finding enough senior women in tech is a problem worldwide. Tala, आप बताएंगे? Tell us something about your work and your education and the things you were doing before joining or starting remotely. बाय द वे हफ्सा ने एक बात मेंशन नहीं की, लास्ट ईयर जून में जब मैं इसका इंटरव्यू कर रहा था तो तब भी इसका यही कंसर्न था कि मुझे इतना मौका नहीं दिया जा रहा। आज भी इसका यही कंसर्न है। दिस इज समथिंग ग्रेट अबाउट हर, सो गुड जॉब हफ्सा। Also, I would also like to add something. So, Faiza, Hafsa का I think maybe 8-9 महीने का एक्सपीरियंस होगा। पूरी कंपनी में कोई भी मेल उठा ले डेवलपर तो she will give anybody a run for their money. Problem solving skills exceptional, self learning exceptional, and मतलब बस कहीं भी कोई फंसा होता है ना तो हम वहाँ पे हफ्सा को फेंक देते हैं कि जी हफ्सा जाओ सॉल्व करते हैं और वो कर देती है। Right. So, एग्जैक्टली। like he is a brilliant engineer, और हम चाहते हैं कि अगर हफ्सा के हमें 10 डुप्लीकेट्स मिल जाए ना तो हम कंपनी को 10 गुना स्केल कर सकते हैं। एग्जैक्टली। So And that's all that's thing the of reason nice. we are talking, to find you Yeah, better that's engineers. yeah. गुड जॉब हफ्सा। That's being super kind of like Talha and Qasim. जी चला तलहा आप आप बता बताएं। रहे थे। मैं 2013 GIK का ग्रेजुएट हूँ और मेरी पहली नौकरी थी अफिनिटी में 11 महीने की थी। आई कुडंट लास्ट देयर फॉर लॉन्ग बिकॉज मुझे कॉर्पोरेट कल्चर समझ नहीं आ रहा था। इमीडिएटली आफ्टरवर्ड्स मैंने अपने एक दोस्त के साथ एक सॉफ्टवेयर हाउस बनाने की कोशिश की। दैट फेल्ड बिग टाइम। और उसके बाद इवन आई डिडंट नो मैंने जिंदगी में क्या करना है। सो एक अपॉर्चुनिटी थी रिमोट वर्क की एक कंपनी में, जो कि एक अमेरिका में कंपनी थी सिलिकॉन वैली में, उसका नाम नोटेबल था। तो वहाँ मैंने इंटरव्यू दिया और आई गॉट द जॉब देयर और मैंने एक रिमोट काम वहाँ पे शुरू कर दिया। अपने घर वापसी सेटल होने के बाद मैं अपनी वालदा के साथ कमरा शेयर कर रहा था और ये रिमोट काम कर रहा था। सो विद टाइम मेरी प्रोफाइल बिल्ड होना शुरू हो गई इस कंपनी के साथ एंड उन्होंने ज़्यादा ट्रस्ट करना शुरू हो गए। पहले मैं एज अ जूनियर इंजीनियर काम कर रहा था, फिर मैं 5 बंदों की टीम लीड करने लग गया क्रोम एक्सटेंशन साइट पे, और मेरी सीईओ के साथ एक अच्छा ताल्लुक बन गया। 2 साल के बाद ये कंपनी फेल कर गई, लेकिन उन्होंने एक और कंपनी नोटल के नाम से शुरू की और उन्होंने मुझे एज अ लीड आर्किटेक्ट जो है उसमें इंडक्ट किया, बैक एंड फ्रंट एंड दोनों में। आज वो कंपनी $1 बिलियन स्टार्टअप है यहीं सिलिकॉन वैली में और बहुत अच्छी रिप्यूट है उस कंपनी की। और इस सारे प्रोसेस में मुझे समझ आ गई कि एक रिमोट नौकरी को किया कैसे जाता है। बेसिकली उस टाइम पाकिस्तान में रिमोट कल्चर था ही नहीं। मैं रिमोट काम कर रहा था तो मुझे आज भी याद है मेरे घर वाले कहते थे तुम तो फारिग हो, औरों को वो प्रेसिडेंस देते थे जिनकी नौकरियां थी जो कि एक्चुअली ऑफिस जाते थे, और मैं कभी ऑफिस जाता नहीं था। तो ये समझ नहीं आती थी कि ये किस तरह जो है इज्जत मुझे मिलेगी या वो सारा। तो नोटल जब एक बहुत अच्छी स्टेट पे थी तो मैंने ये कंपनी छोड़ दी थी और इसके बाद मैंने सीरीज ऑफ रिमोट जॉब्स की थी जिसमें डिफरेंट स्टार्टअप्स के साथ काम किया। मुझे समझ आ गया कि सिलिकॉन वैली स्टार्टअप्स का एक बड़ा पर्टिकुलर कल्चर होता है, एक इंजीनियर की प्रोफाइल होती है, एक इंजीनियर एक सर्टेन पर्सनैलिटी के लोग हायर होते हैं इन कंपनीज में, काम करते हैं, एक्सेल करते हैं, ग्रो करते हैं और फ्लरिश करते हैं बड़ी पर्टिकुलर पर्सनैलिटी से। और उसके बाद जो है मुझे समझ आना शुरू हो गई। 2018 तक मैं इसी तरह इसी मोड में काम करता रहा। 2016 में मैं कासिम से मिल चुका था। कासिम और मैं एक कोवर्किंग स्पेस में मिले थे। मैं तब भी रिमोट वर्कर था। कासिम अपने एक स्टार्टअप पे काम कर रहे थे जो आपको बताएंगे। तो हम लोगों के दरमियान हमने आइडियाज वगैरह शेयर किए तो बहुत अच्छी वाइब्स बनी हमारे दरमियान। लेकिन हम कभी कब तक काम साथ नहीं कर चुके थे। 2018 में मैं दोबारा कासिम से मिला। हम अच्छे दोस्त थे अब तक तो। और मैं ये समझ चुका था कि अगर रिमोट वर्क है दैट इज गोइंग टू बी द फ्यूचर, लेकिन इसे स्केल किस तरह किया जाए। तो वी स्टार्टेड अ सॉफ्टवेयर हाउस मिलके 2018 में, जनवरी 2018 में क्रिएटिव मॉर्फ के नाम से। 2020 तक हमने पेंडेमिक तक वो सॉफ्टवेयर हाउस चलाया। इट डिडंट वर्क आउट बहुत अच्छे तरीके से, डिड वर्क आउट, लेकिन वो कुछ बीच में मसले मसाइल आ गए खासकर पेंडेमिक की वजह से।
और फिर रिमोट बेस का आइडिया आया एंड ऑल सारा। तो थ्रू आउट माई लाइफ मैंने एक चीज ये की है कि मैंने रिमोट वर्क किया है और अब कुछ सालों से रिमोट वर्क सिखाया है। दैट्स अगर मेरी जिंदगी को कंक्लूड किया जाए तो मेरी जो जिंदगी है वो रिमोट वर्क के अराउंड ही रही है, और मैं एक रिमोट इंजीनियर ही हूँ और शायद मरते दम तक एक रिमोट इंजीनियर ही रहूंगा। सो दैट्स मी 5 मिनट में। Right. I'm older than you, so I started my career in 2009, and then 2014 I started working remotely, and it's been 7 years now. So नाइस सो आई थिंक yeah, वी कम फ्रॉम द सेम वो जर्नी के। yeah, रिमोट वर्क को पहले कुछ समझा ही नहीं जाता था, मतलब मुझे बहुत yeah, गुस्सा चढ़ता था जब कहते थे बेटा ये ले आओ वो ले आओ, तुम मीटिंग में बाद में लेना, लैपटॉप से ही खेल रहे हो ना, या लैपटॉप से पैसे निकाल रहे हो। रिश्तेदार आते थे पूछते थे अच्छा लैपटॉप से पैसे कैसे कमाए जाते हैं। तो लेकिन yeah, अब देखें हालात के, रिमोट वर्क इस बड़े सिस्टमैटिक तरीके से जो है वो बड़ा इन है। सो definitely. दैट्स गुड, दैट्स नहीं, अभी भी घर वाले इसी तरह लेते हैं। गुड। It's a Yeah, bigger also problem like for women. Chai bana do. It's a bigger problem for women. सबसे बड़ा Than, मसला ये है। yeah. नहीं सिर्फ जी विमेन जी नहीं, कासिम। मेरी बीवी दूसरे कमरे में सो रही है, हम बहुत छोटे से अपार्टमेंट में हैं, मैं शोर मचा दो तो आवाज आती है, शोर ना मचाओ तो ये अभी भी मसला है। ऐसी बात नहीं है कि Right. जी कासिम। जी सो मेरी जर्नी एक स्लाइड छोटी वर्जन सुनाता हूँ। सो बचपन से शौक था टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा। वैसे तो 11 साल का था जब एक बेसिक सी वेबसाइट बनाई थी HTML CSS की। उसको वेबसाइट नहीं कह सकते, तस्वीरें लगाई, टेक्स्ट लगाया, टेक्स्ट को हाइपरलिंक किया और कहा वेबसाइट बन गई फ्रंट पेज के ऊपर। बट वाज सुपर पैशनेट अबाउट टेक्नोलॉजी। फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा ग्राफिक डिज़ाइन, सेल्फ टॉट ग्राफिक डिज़ाइन की तरफ चला गया, UI UX की तरफ चला गया। सो आई स्टार्टेड वर्किंग अगेन रिमोटली कह लें या फ्रीलांसर कह लें फॉर डिफरेंट कंपनीज, पहले पाकिस्तान के अंदर ही और फिर इंटरनेशनली कुछ फैशन ब्रांड्स के साथ काम करना शुरू कर दिया। अभी लाइक दिस इज मी व्हेन आई एम probably 14 15 16, eventually went to college और अब एक रेगुलर मेरी इनकम सोर्स बन चुकी थी। लम्स में पढ़ने गया तो साथ साथ मैं सोसाइटीज़ में काफ़ी ज़्यादा था और साथ साथ मैं वेबसाइट्स बनाता रहता था फॉर डिफरेंट कंपनीज एंड ब्रांड्स। तो एक रेगुलर इनकम वो थी, बट आई ऑलवेज वांटेड टू डू समथिंग बिगर देन दैट के भी एक रेगुलर इनकम आ रही है। रिमोटली ही काम कर रहा था, जाहिर बात है, स्टूडेंट था। सो फाइनल ईयर ऑफ कॉलेज मेरी एंट्री हुई एक बड़े क्रेजी तरीके से स्टार्टअप वर्ल्ड के अंदर, और वो ये था कि मैंने एक ऐप का, मेरे पास आइडिया था कि आई वाज रियली पैशनेट अबाउट डाइवर्सिटी एंड also passionate about people being able to express themselves। तो काफ़ी पाकिस्तान में टॉपिक्स हैं टैबू जिनके बारे में लोग बात नहीं कर सकते। रिलीजन हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, औरत मार्च हो गया, आजकल के ज़माने में पीपल आर डिबेटिंग ओवर दैट। सो बेसिकली उसकी मैंने एक ऐप बनाई where people could talk about anything that they wanted, और वो सिर्फ कॉन्वर्सेशन, एक सोशल नेटवर्क था, यूनिवर्सिटी की विसिनिटी के अंदर ही रहेगी बात, उससे बाहर नहीं जाएगी। कुछ एनोनिमिटी का भी उसमें एलिमेंट था, तो वो ऐप बड़ी वायरल हुई। सो विद इन 2 weeks over 70% ऑफ द इंटायर कैंपस वाज ऑन द प्लेटफॉर्म। लम्स के अंदर यूजर एंगेजमेंट स्टैट्स बहुत अच्छे थे, तो एक बड़ी उस तरह से हाइप मिली। उसी के प्रोसेस के अंदर आई बिकेम पार्ट ऑफ अ कपल ऑफ प्रोग्राम्स। एक इंक्यूबेटर प्लान 9 में गया। उसके बाद काफ़ी मेरे इंटरनेशनल ट्रिप्स लगे जस्ट थ्रू दीज प्रोग्राम्स। पैसे तो उस ज़माने में होते नहीं थे, ना पैसे होते थे ना लोग होते थे। थोड़ी फ्रीलांसिंग करता था और उसी से खुद करके बहुत जूनियर इंजीनियर्स, फ्रेश ग्रेजुएट्स होते थे, और एक फ्रेश ग्रेजुएट होता था और एक अभी पढ़ रहा था यूनिवर्सिटी में, उनके साथ मिलके ही काम करता था। सो फिर US के काफ़ी ट्रिप्स लगे, 2-3, और टर्की गया, काफ़ी मुझे एक्सपोजर मिला। आई गॉट टू इंटरेक्ट विद अ लॉट ऑफ पीपल इन द वैली। तो वहाँ उसी वक्त मुझे समझ आ गई कि दिस इज़ द प्लेस दैट आई वांट टू बी और आई वांट टू लिव, सिलिकॉन वैली। वापस आया, अगेन तलहा से मेरी दोस्ती हो चुकी हुई थी। जब मैं पाकिस्तान में काम कर रहा था तो वी वर वर्किंग आउट ऑफ द सेम कोवर्किंग स्पेस। सो वापस आया, तलहा जो है उस वक्त तलहा US में था, मैं पाकिस्तान में था। हमने कहा कि सॉफ्टवेयर हाउस बनाते हैं, बिकॉज अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल भी करना है। दैट वाज रियली इंपॉर्टेंट एट उन वक्तों के अंदर। हमने एक सॉफ्टवेयर हाउस स्टार्ट किया इकट्ठे, क्रिएटिव मॉर्फ के नाम से।
एंड देन कोई साल के अंदर वो काफ़ी स्टेबल हो गया और वो इतना हो गया कि वो मेरी मूव टू यूएस सपोर्ट कर सकता था। तो खैर मैं फाइनली हम लोग, मैं और तला एक कमरे में बैठे और हमने कहा अब ये चीज़ें स्टेबल हो गई हैं तो अब क्या करना है, बिकॉज वी आर द काइंड ऑफ पीपल कि जब चीज़ें स्टेबल हो जाए ना तो हम लोग परेशान हो जाते हैं कि ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई है, यू नो वी नीड टू डू समथिंग डिफरेंट। हम तो टिकट कराया, मेरा टूरिस्ट वीज़ा था उस वक्त, और मैं वैसे तो कहा कि मैं जाके देखता हूँ 2 हफ्ते बाद आ जाऊंगा, लेकिन वहाँ गया एंड आई डिसाइडेड टू स्टे देयर। ना मुझे पता था किधर रहना है, ना मुझे पता था कहाँ जाना है। पहले ऑस्टिन गया, फिर वैली गया, और दोस 2 वीक्स टर्न इनटू 8 मंथ्स। रिमोटली काम कर रहा था, अगेन कंपनी के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा था, सॉफ्टवेयर हाउस के साथ। यूएस में एक स्टार्टअप भी किया विच वी फेल्ड व्हाइल वी वर रनिंग द सॉफ्टवेयर हाउस, और फिर खैर इवेंचुअली केम बैक टू पाकिस्तान। और पेंडेमिक हो गया उस वक्त, हालात भी हमारे बड़े वो थे, वी वर स्ट्रगलिंग बिकॉज जो स्टार्टअप था, जो प्रोडक्ट थी कंपनी की, वो भी नहीं इतनी चालू थी। तो मैं और तला बैठे और हमने कहा कि हमारी कोर स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वी रियलाइज कि हमने सारी जिंदगी काम ही रिमोट किया है, और एक चीज़ है जिसको हम समझ सकते हैं वो रिमोट वर्क है। दुनिया रिमोट की वजह की तरफ जा रही है, पेंडेमिक हो गया है, कंपनीज कंफर्टेबल हो रही हैं। सो एक आइडियल एनवायरनमेंट थी, बट इट वाजंट एज इजी एज दैट। सेम टाइम पे क्या नाम है, हमें एक क्लाइंट मिल गया फॉर द सॉफ्टवेयर हाउस, एंड देन तलहा एंड आई डिसाइडेड कि भाई हम इसको अगर हम स्केल कर सकते हैं तो सिर्फ एक सॉफ्टवेयर हाउस इतनी जल्दी स्केल नहीं हो सकता, 15-15 साल लगते हैं टू रीच 500 पीपल। सो अगर स्केल कर सकते हैं तो एक ही तरीका है कि अब इस क्लाइंट के साथ हमने नहीं काम करना, हमने अपने इंजीनियर्स को डायरेक्ट कराना है, उनको एक्सपोजर देना है, जो हमने चीज़ें सीखी हैं, जो हमने लर्न किया वैली में जाके, उनको सिर्फ सपोर्ट देनी है एंड लेट देम डू द वर्क। और वहाँ से रिमोट बेस का आइडिया आया, और वो पहला क्लाइंट था, और उसके बाद फिर वो आते गए आते गए आते गए, एंड वी हैव बीन ग्रोइंग रियली फास्ट सिंस द पास्ट 12 मंथ्स। सॉरी ये लंबा ही हो गया, मैं छोटा रखना चाह रहा Right. था। नहीं नहीं नहीं, feel free, because I wanted to make sure that it's informal and it's not like कि मैं आप लोगों की interrogation कर रही हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कि आप तो कर रही हैं। हाँ, kind of, but I'm trying to make sure that you don't feel it that I'm doing that. So मुझे बताइए कि so everybody saw the news, everybody saw everybody who's listening to you right now, or people who came to me when I posted about the live chat about के remote base है क्या. So if I ask you to define remote base for someone who's new to it and who doesn't understand, so what would you say? Anyone can answer that. I think कासिम को करना चाहिए because for obvious सही reasons. तो ऑडियंस पे डिपेंड करता है। सो फॉर यूएस बेस्ड कस्टमर्स इट्स अ वेबसाइट वेयर यू कैन गो एंड यू कैन कॉन्फ़िगर योर एंटायर रिमोट इंजीनियरिंग टीम। तो आप बता दें आपको फ्रंट एंड पे रिएक्ट चाहिए, बैक एंड पे नोड चाहिए, और विद इन 24 आवर्स आपकी टीम तैयार करके आपको दे दी जाएगी। ये एक कस्टमर पर्सपेक्टिव है। बट हम एक्चुअली क्या करना चाह रहे हैं या विजन क्या है, वो ये बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअल विजन इज टू एम्पावर पाकिस्तानी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एंड गिव देम ग्लोबल एक्सपोजर। सो जो ये टीम्स बनती हैं, इसके बिहाइंड द सीन्स हम लोग जो टीम्स बनाते हैं वो पाकिस्तानी इंजीनियर्स को ढूंढते हैं, वी फाइंड देम, वी ट्रेन देम, एंड देन वी प्लेस देम इन दीज कंपनीज। और वो इन कंपनीज के साथ डायरेक्टली डे टू डे इंटरैक्ट करते हैं, डे टू डे काम करते हैं। हम सारे मिडिल मैन को रिमूव करते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर से लेके यूआई यूएक्स डिजाइनर से लेके इंजीनियरिंग मैनेजर्स, टेक लीड्स हमारे होते हैं। बट देन दीज पीपल कम्युनिकेट विद दीज कंपनीज डायरेक्टली, और वो उनके साथ डायरेक्टली लर्न करते हैं कि एक सिलिकॉन वैली का स्टार्टअप, एक वन ऑफ द मोस्ट इनोवेटिव कंपनीज इन द वर्ल्ड कम आउट ऑफ दिस वन कॉन्सेंट्रेटेड रीजन। तो ऐसी क्या बात है इनके अंदर के जो क्या माइंडसेट है या क्या बात है कि वो इतनी आराम से और इतनी तेजी से स्केल कर सकते हैं। सो वो हम एक माइंडसेट इनकलकेट करते हैं अपने इंजीनियर्स के अंदर, उनको ट्रेन करते हैं, बूट कैंप्स के थ्रू ट्रेन करते हैं, जिनमें से एक बूट कैंप हफ्सा भी लीड करती हैं। तो वो उनको ट्रेन करते हैं, देन हम उनको डायरेक्ट करा देते हैं अपने कस्टमर्स के साथ, अपने क्लाइंट्स के साथ, और वो उन्हें कॉन्स्टेंटली सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं थ्रू आउट दिस प्रोसेस, सॉफ्ट स्किल्स से लेके कम्युनिकेशन से लेके। बट दे आर द हीरोज, हम बैक फुट पे होते हैं, रादर देन के एक्सटेंचर या कोई इस तरह के बड़ी कंपनीज जो दुनिया में सॉफ्टवेयर हाउसेज बिगेस्ट इन द वर्ल्ड, और इवन इन पाकिस्तान अगर आप आरबी सॉफ्ट या इस तरह की बात करें, तो हम लोग इंडिविजुअल्स को एम्पावर करते हैं। वो कंपनीज इंडिविजुअल्स के साथ काम करती हैं, टीम्स के साथ काम करती हैं, और ये सारा हमारा मॉडल है। Right. So how is it different? मतलब it sounds, अगर मैं सुन रही हूँ उसको पहली बार, even though I know about it, but if I'm listening it to the first time, it may sound like a desi version of Upwork.
isn't it? नहीं, so Upwork से if you were to say कि इसका closest version क्या है, तो वो TopTal होगा. So the TopTal is the closest competitor in the world. Upwork जो है वो short term freelancing projects कराता है. हमारी short term freelancing projects या engagement नहीं होती. हमारे long term projects होते हैं जिसके अंदर remote base itself as an entity engaged रहता है. So we pay our engineers above market salaries. So जो market salaries होती है पाकिस्तान के अंदर उससे ज़्यादा pay करते हैं. हम लोग client से लेते हैं, we get paid by the clients and then it's a win-win for everybody. It's not a zero-sum game. So TopTal क्या करता है, Upwork तो ये करता है, TopTal ये करता है कि वो engineers को vet करता है, उनको ढूंढता है, ट्रेनिंग वो इतनी प्रोवाइड नहीं करता जितने हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, एंड देन TopTal इज इन्वॉल्व इन द एंटायर प्रोसेस. हम लोग उससे भी एक स्टेप आगे. सो TopTal मल्टीपल डोमेन्स को कैटर करता है, इंजीनियर से लेके डिजाइनर से लेके. हम लोग ना सिर्फ मल्टीपल डोमेन्स को कैटर करते हैं, हम सिर्फ एक डोमेन को कैटर करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, और उसके अंदर भी इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को नहीं कैटर करते, हम पूरी पूरी टीम्स बनाकर देते हैं. सो वेरी डिफरेंट फ्रॉम अपवर्क. अगर आप हमारे साथ काम करेंगे तो ये नहीं होगा कि आप 10 फ्रीलांसर्स को ट्राई करेंगे और आप फिर फिगर आउट करेंगे कि ये फ्रीलांसर अच्छा है या वो फ्रीलांसर अच्छा है. हमारी आइडियल आईसीपी जो आइडियल कस्टमर प्रोफाइल है वो भी डिफरेंट है. सो हमारे वो नहीं है लोग आइडियल कस्टमर प्रोफाइल दैट हैव एन आइडिया, जो आइडिया बनवाना चाहते हैं. हम कंपनीज के साथ काम करते हैं जिनकी ऑलरेडी प्रोडक्ट एंड मार्केट है और वो स्केल कर रहे हैं, जिनके लाखों यूजर्स हैं, और उनको एक सॉलिड टीम प्रोवाइड करते हैं. दे डोंट हैव टाइम टू रिस्क the quality of code, and they don't have time to even vet the engineers. So hum wo problem jaake solve karte. So very very different from Upwork, but very similar to TopTal if people know about TopTal. Right. मेरा अपना काफी लंबा जर्नी है अपवर्क के साथ. Almost 3-4 years. I've been part of their first international social impact report. So again, वही remote working का जो उनका भी facilitation है, that is amazing in terms of you being able to maintain your time sheets automatically and a lot of other things. So आप लोगों ने of course when you started it, so did you have this idea in mind that it is going to go this big, that you will be able to raise so much money? Was it in your head at that time? In the head, तो like honestly Talha can also answer this. Like हम लोग थोड़े nutcase किस्म के लोग हैं, so we always thought we were going to create a big impact. Money इतना बड़ा motivator नहीं है, but हमें हमेशा से, Talha can also like add in, हमेशा से लगता था कि कुछ बड़ा impact create करेंगे. ये एक बड़ी वेग सी टर्म है कि बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे. वो क्या इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे, वो कैसे करेंगे, वो उस पे एक ये बड़ी लंबी जर्नी है. अगर आप न्यूज़ के आर्टिकल्स पढ़ें तो लिखा हुआ आता है कि रिमोट बेस्ड रेज्ड एक्स अमाउंट ऑफ मनी इन द लास्ट 10 months या 11 months, लेकिन इसके पीछे जो स्ट्रगल्स हैं और जो जितने फेलियर्स हैं, मैं तो कहूँगा मेरे से बड़ा फेलियर शायद कोई भी ना हो. तलहा को भी मैं साथ साथ लेके चला हूँ और तलहा भी मुझे साथ साथ लेके चला इन दैट जर्नी. तो हमेशा से हमें लगता था हम इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे, बट क्या वो इम्पैक्ट होगा और वो कैसे होगा, वो आई थिंक हमें इतना नहीं डायरेक्शन थी जो कि अब है, और जो अब पिछले 10 या 11 months के अंदर हमने स्केल किया है, और जो अब प्रोडक्ट मार्केट फिट मिला है कि हमारे पास सप्लाई साइड प्रॉब्लम है. एंड whoever is hearing this कि हमें engineers चाहिए, हमारे पास अनलिमिटेड डिमांड ऑफ पीपल that need those engineers. So एक ऐसी प्रॉब्लम के प्रोडक्ट हमारे हाथों से खींची जा रही है इस वक्त कि हमें इंजीनियर्स चाहिए. सो ऐसा प्रोडक्ट मार्केट फिट जो है, आई थिंक बस लॉट्स ऑफ फेलियर्स के बाद वी फिगर्ड इट आउट. एंड तला आप भी जरूर ऐड करें. मैं इसमें जरूर कुछ ऐड करना चाहूंगा कि मैं और कासिम क्रिएटिव मॉड फॉर रिमोट बेस्ड हमें बहुत अर्सा हो गया साथ काम करते हुए, 3-4 साल हो गए. कोई एक दिन ऐसा नहीं गुजरा जब ने एक दूसरे को चैलेंज ना किया हो. तो ये नहीं पता था कि क्या करने वाले, लेकिन एक दूसरे को हम बहुत चैलेंज करते हैं, बहुत टफ टाइम देते हैं कि नहीं ये वो सारा. लेकिन नाउ व्हेन आई सी लुक बैक एंड आई ट्राई टू कनेक्ट द डॉट्स, तो वो एक एक दिन बड़ा बहुत वर्दी है मेरे लिए, मतलब कि कासिम के साथ काम करना है और एक दूसरे को चैलेंज करना है और. अगर आपके वो सवाल है कि क्या हमें पता था कि हम क्या करने जा रहे हैं, वाकईतन नहीं पता था. मुझे एटलीस्ट नहीं पता था, कासिम का बहुत ज्यादा क्लियर होता है मेरे से. लेकिन हाँ, हमें ये पता था कुछ करना है. और अगेन प्रोडक्ट मार्केट फिट हमेशा कासिम कहता था 2018 में, 19 में, 20 में, ये बार बार कहते थे कि प्रोडक्ट मार्केट फिट लाना. हमें उसका मतलब ही नहीं पता होता था कि क्या चीज होगी प्रोडक्ट मार्केट फिट. लेकिन ही ऑलवेज यूज्ड टू से जब आएगा यू वुड नो, तुम्हें समझ आ जाएगी कि प्रोडक्ट मार्केट फिट आ गया. और आज यहाँ मैं बैठ के
सुबह के 6:30 बज रहे हैं, कह सकता हूँ कि हाँ हमारे पास प्रोडक्ट मार्केट फिट है, वाकईतन है। राइट राइट। अच्छा, मुझे ये बताइए कि डू यू रियली कंसिडर कि जेंडर इंक्लूजन जो है इट्स वन ऑफ द कोर वैल्यूज ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, एंड इफ सो व्हाई? सही है, and I'd also like Hafsa to add in here because I don't want to talk on women related issues if I'm not a woman, obviously. But हफ्सा को तो मैं भी gender, पकड़ती हूँ, पहले आप और gender, so honestly हमारी कंपनी में it is a core value, but it is not just gender. So it is a core value of having diversity in the company, चाहे वो कोई क्रिश्चियन है, चाहे कोई वो मुसलमान है, चाहे वो कोई लड़की है, चाहे वो कोई लड़का है, एवरीबडी शुड बी गेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज। और किसी को इंग्लिश बोलनी आती है, किसी को नहीं बोलनी आती, जो भी आपका है ना वो सारा कुछ इट शुड ऑल बी ऑन मेरिट। और कोई ऐसी किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए कि उसको एक तो मौका नहीं मिल रहा, एंड उसके बाद डाइवर्सिटी को और ज्यादा प्रमोट करना चाहिए। तो इसका ये नहीं मतलब कि अगर हमें 500 सुन्नी मर्द एक साथ इंजीनियर्स मिल जाएंगे तो हम 500 के 500 हायर कर लेंगे अगर वो अच्छे होंगे। डाइवर्सिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि वहीं से इनोवेशन निकलती है। क्यों इस वक्त सिलिकॉन वैली में एक कॉन्सेंट्रेटेड एरिया के अंदर दुनिया की सबसे इनोवेटिव कंपनीज होती हैं, बिकॉज दैट इज द मोस्ट डाइवर्स प्लेस इन द प्लैनेट दैट एटलीस्ट आई हैव एवर सीन। और मैं स्टैट्स बल्कि इस कॉल के बाद चेक करूंगा, माइट बी द मोस्ट डाइवर्स प्लेस एवर। वहां पे 4 बंदे सड़क पे गुजरते हैं ना, तो उसमें से एक लड़की होती है, एक लड़का होता है, एक एशियन होता है, एक ब्राउन स्किन्ड होता है, एक वाइट स्किन्ड होता है। सो दैट आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अब इसको माइंड में रखते हुए what can we do to make sure कि किसी के साथ जाती ना। So if somebody is a woman or a female engineer at our company, तो yes there is a chance कि उनको प्रॉब्लम होगी कि वो रात को 8, 9, 10 बजे तक दफ्तर नहीं बैठ सकेंगे, क्योंकि उनकी फैमिलीज उनको कहेंगी कि इट्स नॉट सेफ, पाकिस्तान है, ऊबर में जाना है, ये करना है, वो करना है। तो हम उनको किस तरह फैसिलिटेट कर सकते हैं कि वो कंफर्टेबल हो, वो घर से काम करें, वो फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स पे काम करें, उनका जब दिल करता है सोए, जब दिल करता है उठे, जब उनको कोई फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है तो वो हमारा स्लैक चैनल अवे के नाम से बना हुआ है, वहाँ पे मैसेज करते हैं कि जी अवे फॉर 2 आवर्स, अवे फॉर 3 आवर्स, कोई पूछता भी नहीं है। सो उस तरह से फैसिलिटेट करना इन ऑल एस्पेक्ट्स, चाहे वो वुमेन है, व्हिच लाइक एटलीस्ट अल्लाह एंड आई आर रियली रियली पैशनेट के पाकिस्तान में मोर, कि अगर पॉपुलेशन का 51% वुमेन है तो फिर टेक में 2% वुमेन क्यों है? लाइक डजंट मेक एनी सेंस एट ऑल। और इस कोर प्रॉब्लम को सॉल्व करना। और हाँ, सो डाइवर्सिटी इज रियली इंपॉर्टेंट, वुमेन इज फीमेल इंजीनियर्स आर रियली इंपॉर्टेंट। और लास्टली आई लाइक टू ऐड कि हमारा दिन की शुरुआत एक डेली किक ऑफ मीटिंग से होती है, जिसका एक ऐसा कोई कंट्रोवर्शियल टॉपिक होता है जिसके ऊपर शायद पब्लिकली मैं भी इस वक्त बात ना कर सकूं ऑन दिस प्लेटफॉर्म, बट लोग एक दूसरे से डिस्कशंस करते हैं जस्ट सो दैट उनके अंदर टॉलरेंस आए ऑफ अदर पीपल, ऑफ अदर जेंडर्स, जिसमें कई बार कॉन्वर्सेशंस मेल वर्सेस फीमेल की तरफ भी कॉन्वर्सेशंस चली जाती हैं, बट जस्ट टू एम्पावर दोज कॉन्वर्सेशंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फिर लोग टॉलरेंट होते हैं, वो भी देखते हैं कि भाई हफ्सा लड़की है या हफ्सा लड़का है या जो भी है, कोड हफ्सा से बेहतर नहीं लिख सकता, तो मदद चाहिए तो हफ्सा के पास ही जाना है। सो दोज काइंड ऑफ थिंग्स आर रियली इंपॉर्टेंट। सो मेरा तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है, और किसी का कोई और भी हो सकता है। Talha, do you think you guys have some specific number in mind? Because पाकिस्तान में अभी जो पाशा के अवार्ड्स होते हैं उसमें जो जेंडर डाइवर्सिटी का रेशो है जो कंपनीज विन करती हैं 30% से ज्यादा नहीं होता है। So Temples is one of the most gender diverse companies in Pakistan, और उनका भी 28-29% gender diversity ratio. So have you guys created this kind of number in your head, or maybe in your policy, that for example in the next 2 years this is the number that we want to reach in terms of gender diversity? अच्छा, ऑब्वियसली किसी नंबर पे मैंने कभी कासिम के साथ बात नहीं की या पर्सनली मैंने सोचा भी नहीं, लेकिन फ्रॉम अ पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू मुझे 8 साल हो गए हैं काम करते हुए, एंड आई हैव वर्कड विद द बेस्ट कंपनीज अराउंड द वर्ल्ड। बहुत अच्छी कंपनीज के साथ मैंने काम किया, और हमेशा एक चीज देखिए कि ये सिर्फ प्रॉब्लम पाशा का नहीं होगा। जो आज एक $1 बिलियन कंपनी नोटल है जिसमें मैं कभी काम करता था, वहाँ एक लड़की थी और 50 लड़के काम करते थे इंजीनियरिंग टीम में, उनमें से मैं भी एक था। लेकिन मुझे जितना मजा उस एक बंदी के साथ काम करने से आता था, या वो जितनी पर्टिकुलर थी अपने काम में, या जितनी वो ऑनेस्ट थी, जितनी ट्रांसपेरेंट थी, शी टॉट मी अ लॉट।
उसका नाम मैं यहाँ लेना नहीं चाहूंगा, लेकिन शी टॉट मी अ लॉट। मेरे जो इनिशियल फेज में जो मेरी ग्रोथ कराई है वो उसे एक बंदी ने कराई है। और मैं इस माइंडसेट के साथ पर्सनली, मैं तो मेरा बस चले तो सारी कंपनी में ही औरतें हों, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस हो रहा है कि मुझे एक औरत ने बहुत ट्रेन किया है मेरे करियर के पाथ पे। वी हैव नेवर डिस्कस्ड अ नंबर, मैंने कभी कासिम के साथ डिस्कस किया नहीं, और कासिम अपना पर्सपेक्टिव जरूर देंगे इस पे, लेकिन फॉर मी द मोर द मैरियर। राइट। अच्छा, हफ्सा आपकी बारी है। तो you reached out to me initially with Hiba to check in with me in terms of if you know we can collaborate in any way or help you. So इन लोगों का तो समझ आता है मुझे, but you are working there, so you have a different perspective of the organization than people who are running it. So if I ask you कि Hiba, for example, I decide to join remote base, तो क्या केस है आपके पास? How would you kind of motivate me कि जी Faiza, you should come, you should work with my team? सो फायजा, मेरे ओपिनियन में यहाँ पे लाइक एक तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल नहीं है. इट्स मोर ऑफ लाइक हम हमारे पास इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, एज एन इंडिविजुअल ट्रीट किया जाता है और इंडिविजुअल को अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं. और जहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स और रिमोट वर्क, मतलब दुनिया की आधी वर्किंग वूमेंस के 50% मसाइल को हल कर देती हैं. अगर पर्टिकुलरली आप मेरे से पूछें तो मुझे सबसे अच्छी बात रिमोट बेस की ये लगती है कि हमें यहाँ पे कभी पिजन होल नहीं किया गया. ठीक है, मैं यहाँ पे एज अ डेवलपर आई थी और मुझे कभी अंदाज़ा भी नहीं था कि मतलब लाइक मेरे वो स्किल सेट्स पॉलिश किए गए यहाँ पे आके, जिनका लाइक मैं खुद भी नहीं. अगर मुझसे कोई लाइक 1 साल पहले पूछता ना कि इफ़ आई कुड लीड समथिंग और डू समथिंग लाइक दिस, तो मैं उसको कहती साफ-साफ कि मतलब आई एम नॉट द काइंड ऑफ द पर्सन, और मैं कभी भी इस तरह की इस चीज़ में नहीं आऊँगी. लेकिन तलहा हमेशा मुझे इनकरेज करते रहते थे, हमेशा लाइक ही लिटरली पुश्ड मी टू द पॉइंट कि अच्छा हाँ ये करो. और अब लाइक मैं अपने बारे में खुद कॉन्फिडेंट हूँ कि हाँ मैं ये चीज़ कर सकती हूँ, और फिर मैं और औरतों को, वुमेन को ट्रेन कर सकती हूँ और फिर सारा काम कर सकती हूँ. सो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग कि एक तो बहुत ज़्यादा ये पिजन होल नहीं करते कि अगर आप के पास स्किल है, टैलेंट है, पोटेंशियल है, तो आपको हमेशा अपॉर्चुनिटी देते हैं. और सबसे बड़ी बात रिमोट बेस की, ये लोग मंथली वो 1-on-1s कंडक्ट करते हैं. पर तलहा और कासिम लिटरली सबसे साथ वो काफ़ी बिजी होते हैं, बट सबके साथ ना पर्सनली जाके कनेक्ट करते हैं और पूछते हैं कि आपको कोई मसले हैं, नहीं हैं, और अगर कोई मसला है तो वो फ़ौरन एड्रेस होते हैं. और इवन लिटरली कि तलहा को तो मैं कभी भी मैसेज करूँ ना तो ही इज़ ऑलवेज बीन लाइक कि अच्छा मैं फ़ौरन प्रायोरिटी पे मसला हल करवाता हूँ. तो ही बी लाइक, सो दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट, मतलब ये चीज़ें ना मुझे नहीं लगता मुझे कहीं और मिलेगी. मैंने काफ़ी जगह और भी काम किया है, बट आई डोंट थिंक कि इतनी जल्दी मसले जितनी जल्दी यहाँ पे हल होते हैं, और फिर यहाँ पे जितनी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ और डाइवर्सिटी है, तो मेरा नहीं ख्याल मुझे कहीं और इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ और चांसेस मिल सकते हैं. सब मुझे ताना आता है तो मैं काम करता हूँ, मेरे ख्याल से पहले ताना आता है बाद में सलाम आता है तो हाँ, सो मतलब तलहा को कभी काम कहूँ ना तो वो बिजी होते हैं, भूल जाते हैं. फिर मैं उनको कहती हूँ कि फिर मैं उनको कुछ कह That's देती one हूँ way to फिर do मैं it. She has excellent managerial skills. I tell you that. he has that है ना. access in my life कि वो ये कर सकती है. he has that access, Right. और कासिम की जिंदगी में भी उसका उतना ही access होगा, pretty sure on that. Yeah. इसके अंदर एक बड़ी जबरदस्त बात जो आपने हफ्सा ने की ना, वो अगेन आई ऑल्सो थिंक दैट इज ट्रू फॉर माई वर्क, एंड दैट इज पर्सनल कनेक्शन. सो आई रन अ कोडिंग बूट कैम्प फॉर गर्ल्स. 3 साल से मैं चला रही हूँ, और बिल्कुल कंप्लीटली डाइवर्स बैकग्राउंड की लड़कियां, नॉन टेक्निकल लड़कियां, मैट्रिक इंटर की भी लड़कियां, and then we train them and put them in software companies locally be, internationally be, and we don't do it as a business model. That's not a business model. We just make sure कि वो recruitment pipeline तक चली जाए. तो हम ये काम कर रहे होते हैं, तो उसमें a lot of people would tell us कि जी स्केल कर लो, ऑनलाइन ले जाओ बूट कैंप, 2 छोटी छोटी लैब्स में पढ़ा रहे हो, पीसीएचएस कराची में पढ़ा रहे हो, लाहौर की लड़कियों ने क्या गुनाह किया है या इस्लामाबाद की लड़कियों ने क्या गुनाह किया है. द पॉइंट इज कि एक तो ये कि आई एम शमीम एंड आई वी बोथ आर बेस्ड इन कराची, और दूसरी बात ये है कि वी रियलाइज कि ऑनलाइन तो बहुत सारे बूट कैंप्स हैं. द रीजन दैट हमारे पास से ये लड़कियां कन्वर्ट होके जो है वो रिक्रूटमेंट पाइपलाइन का हिस्सा बनती हैं, वो ये है कि वी नो ऑल ऑफ देम एंड दे ऑल हैव एक्सेस टू अस एंड वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद देम. And that time that Hafsa is talking about, you Talha, you and Qasim, you spending with your team, that matters a lot.
एंड आई थिंक वो जो चीज है ना वो मिसिंग होती है, चाहे आप किसी का करियर ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, चाहे आप किसी को पढ़ा रहे हो, चाहे आप लोगों के साथ काम कर रहे हो. If people do not stay connected with the people who are on top of them, then that will become a really big problem. मतलब वो एक disconnect create होना शुरू हो जाएगा. एक And the डिस्कनेक्ट क्रिएट जी जी एक please डिस्कनेक्ट go ahead. क्रिएट हो जाता है, और एक फिर वो ना आपके पास डायरेक्शन में जो आपको एक लाग कर रहे होते हैं ना, क्योंकि अब मैं अपने करियर में बहुत ज़्यादा लाइक इनिशियल स्टेज पे जाऊँ ना, तो मैं बहुत, जब मैं यहाँ पे आई थी ना, तो मेरा लाइक तलहा के साथ इंटरव्यू था, एंड ही बी लाइक मैं ना बहुत ज़्यादा क्योस का शिकार थी कि तलहा जो मैं कर रही हूँ मैं नहीं करना चाहती हूँ, मेरे पास कोई डायरेक्शन नहीं है, तो वो मुझसे पूछ रहे थे मैं स्विच क्यों करना चाहती हूँ. तो मेरा सबसे बड़ा मसला था. तो लाइक अभी भी मैं काफ़ी हद तक हल हो गया, लेकिन स्टिल क्योस इज स्टिल बीइंग देयर, बट काफ़ी कम हो गया, बट इट्स स्टिल बीइंग देयर. कि अगर डायरेक्शन हमें अपर मैनेजमेंट से ना मिले ना, तो फिर हमें कहीं से भी नहीं मिलती है. Right, definitely. मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा फायजा. बाय द वे, पर्सनल कनेक्शन की अगर हम बात करें, जब मैं इस कंपनी में, ये कंपनी कासिम ने 2 महीने या 3 महीने पहले मेरे से स्टार्ट की थी. रिमोट बेस से पहले जो क्रिएटिव मॉर्फ था, जब मैं आया था, मैं पहले दिन जो इस कंपनी का फर्स्ट एम्प्लॉय था, उससे कासिम का बहुत पर्सनल कनेक्शन था. लाइक उनके कुछ प्रॉब्लम्स थे जो उन्हें पता भी थे. वो कल्चर मैंने लिया, मुझे समझ आ गई ये कल्चर इंपॉर्टेंट है. और फिर वो मैंने कल्चर हर किसी को देने की कोशिश की. तो कल्चर इस तरह का हमेशा टॉप से स्टार्ट होता है, और अगर हमारे सुनने वाले जो हैं वो कोशिश हमेशा ये करें कि इस कल्चर को इनकलकेट करने की कोशिश करें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है उसका, और आज तक हम वो कल्चर चला रहे हैं. राइट, बिल्कुल. अच्छा, एक मेरा क्वेश्चन अब ये है कि आप, बिकॉज ऑफ कोर्स यू आर गेटिंग रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम क्लाइंट्स टू get them teams. So ऐसा होता है कभी कि they specifically ask for a gender balanced team? जी तला आप कहना चाहेंगे? अभी रिसेंटली हुआ दें, क्या? हाँ बिल्कुल दें. बताएं. सो जी ये बिल्कुल होता है, और हम इस पे काम भी स्टार्ट कर रहे हैं. सो वी आर मेकिंग रिमोट बेस फॉर वुमेन, जिसके अंदर हम जेंडर बैलेंस टीम्स देंगे, जिसका विच इज़ अ वेरी बिग चैलेंज फॉर अस एज वेल टू एग्जीक्यूट इट. सो वी आर वर्किंग ऑन इट. बट हाँ जी, जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, यू नो, द वर्ल्ड इज गेटिंग मोर अवेयर. तो ये चीज़ें पहले, जब 3 साल पहले शायद इतनी नहीं होती थी जितनी आज होती हैं. और मैं तला पे इसलिए कह रहा था बिकॉज एक अकाउंट है हमारा जो तलहा देखते हैं, जिसके अभी रिसेंटली उन्होंने कहा है कि हमें अपनी टीम को, यू नो, वी वांट आवर टीम टू बी जेंडर बैलेंस, तो वी नीड मोर फीमेल इंजीनियर्स फ्रॉम यू, ताकि हमारी टीम जेंडर बैलेंस हो. एंड इसलिए तलहा आप भी बता सकते हैं जो. मैं इसमें बस एक ऐड करना चाहूंगा बात, कि उस टीम में एक बंदी है. मतलब 10 मेरे ख्याल में लड़के काम करते हैं और एक बंदी है. शी गॉट प्रेग्नेंट कुछ महीने पहले. वो मेटर्निटी लीव पे थी. आज तक मैंने किसी रिमोट कल्चर पे ये नहीं देखा कि एक औरत को मेटर्निटी लीव मिले. रिमोट जॉब्स का ये होता है कि अगर आप 2 दिन, इफ यू डोंट इवन शो अप फॉर 2 डेज, आपको निकाल दिया जाता है. रिमोट है, मुश्किल तो नहीं है. उन्होंने उसे मेटर्निटी लीव दी, वो वापसी आई. वो आज स्टैंड अप्स में अपने बच्चे को, उसका बच्चा शोर भी मचा रहा होता है, हर कोई बर्दाश्त भी करता है. और उसके टास्क थोड़े कम कर दिए गए हैं ऑल. तो मैं फिर से कहूंगा कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट है. हम अपने क्लाइंट से ये सीखते हैं, आगे हम ये प्रमोट करते हैं. हमारे क्लाइंट्स ही है. सिलिकॉन वैली बना ही इन चीजों पे, वैल्यूज पे बना हुआ है. ये कोर वैल्यूज ये हैं, तो वही हम आगे देने की कोशिश कर रहे हैं. Right, right. Yeah, this is something that I've also noticed in the past 7 years, that the clients that I work with, most are, from there. So, January, May, like all of my family, both my parents, my brother, his wife, all of them got COVID, and my father was really serious. He was in the COVID ward for a while, and I had like a lot of deadlines at that time. Like I was swamped with work, and and after that, after my dad went to hospital, he came back, then my uncle, my only chacha passed away due to COVID. So wo pura jo mahina tha na, wo bilkul, I was completely in chaos, and I had no time to meet anything. And let me tell you something, that the 2 projects that I was working at that time, I sent a message to both of the clients that my family is hit by COVID and I may not be able to finish the deadlines. And both of them extended the deadlines to March without even me asking, without even me kind of requesting them that please do that. And they were like, just take care of your family, forget about work.
Work and wait, no problem at all. So this is something that maybe the companies here locally need to learn in terms of valuing the people more. Exactly. And और हम ये लाना चाह रहे हैं चेंज, ये दुनिया में आगे, और ये उस कंपनी का ही फायदा है। वो एम्प्लॉय बाद में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। तो ये कल्चर तो 100% होना चाहिए, 100% होना चाहिए। राइट। अच्छा, मुझे ये बताएं कि व्हाई डू यू थिंक दिस इज द राइट टाइम फॉर समथिंग लाइक रिमोट बेस? अच्छा, ये तो कासिम जवाब देंगे। रियली सॉरी टू कट यू फायजा। इस कॉल में हिबा भी है, और इन 2 सालों में जितना हिबा का इम्पैक्ट रहा है हमारी कंपनी में, हमारी जिंदगियों में, हमारे पूरे प्रोसेस में, इमेंस इम्पैक्ट है। तो प्लीज उन्हें भी एंगेज करें। मुझे पता है वो थोड़ी शाय है और उन्हें चोट भी लगी हुई है, तो प्लीज उन्हें एंगेज जरूर कीजिए। चोट नहीं लगी हुई, उनका ऑपरेशन हुआ है, इसलिए वो इस पे, बट शी स्टिल हियर, और वो अपनी मर्जी से फिर भी ज्वाइन कर रही है। एग्जैक्टली, बट बहुत बड़ी बात है। So why now? Qasim, would you like to take it? जी, sure. So I think it's like I said, बहुत ही evident है कि all the stars aligned. Remote pandemic की वजह से companies have become so comfortable with remote work. यहाँ तक कि Twitter हो गई, Square हो गई, Google हो गया, Facebook हो गया, all these companies are going remote because उनको ये बात समझ आ गई है कि ज़रूरी नहीं है कि एक ही कमरे के अंदर जब तक सारे बैठेंगे नहीं तब तक काम नहीं होगा। अगर सॉफ्टवेयर इन द क्लाउड हो सकता है तो कंपनी भी इन द क्लाउड हो सकती है। So I think it is like the optimum time. Why now का तो सिंपल सा जवाब है कि इससे ज़्यादा opportune moment नहीं हो सकती, and not just for remote work but for Pakistan as well. क्यों? क्योंकि आज आप कहती हैं कि मैं fully talented हूँ और मैं इतनी talented हूँ कि मैं जाके फेसबुक के अंदर काम कर सकती हूँ। दिस इज प्री पेंडेमिक, फेसबुक के अंदर काम कर सकती हूँ। फेसबुक आपको इंटरव्यू भी नहीं लेगा, वो पहले पूछेगा कि क्या हम आपको लीगली एम्प्लॉय कर सकते हैं इन द यूनाइटेड स्टेट्स, जिसका जवाब नो होगा, और आपके पास वो अपॉर्चुनिटी का एक्सेस वहीं पे खत्म हो जाएगा। फॉरगेट अबाउट टैलेंट, फॉरगेट अबाउट जितनी भी आप मेहनत कर चुकी हैं, वो पहला मरहला ही इतना मुश्किल है। फिर नेक्स्ट मरहला होता है कि वो कहते हैं चलो ठीक है, लेट्स टेक अ बेट ऑन यू, लेट्स टेक अ बेट ऑन यू का फिर अब नेक्स्ट प्रॉब्लम, अगेन काम आपने कोडिंग का करना है, लेकिन अब नेक्स्ट मरहला है कि आपका H1B उन्होंने अप्लाई करना है। ठीक है, फिर आपका 6 महीने से 1 साल H1B वो अप्लाई करेंगे, उसकी लॉटरी होगी, लॉटरी में आपका मोस्ट प्रोबेबली नाम नहीं आएगा, फिर भी आप काम नहीं कर सकते। सो पाकिस्तान के लिए कितनी एक इंसेन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हमारा it's not easy for us to travel, it's not easy for us to go to Silicon Valley, because मैं गया हूँ, मैं 8 महीने वहाँ पे जो मुश्किल से मैंने अपना वीज़ा सॉर्ट किया है, सब कुछ किया है। सो क्या नाम है, वो अब पाकिस्तान की अपॉर्चुनिटी कि अब ये चीज़ें मैटर नहीं करती। अब ये मैटर नहीं करता कि आपका पासपोर्ट किस कलर का है, आपका पासपोर्ट किस कलर का क्या ताल्लुक है कि आपने फेसबुक में काम करना है। आपकी स्किल्स आपकी मेन स्ट्रेंथ होनी चाहिए, और रिमोट वर्क ने इसको इनेबल किया है। और इससे पाकिस्तान को यही फ़ायदा है कि अगर यही अब इंजीनियर्स जो आप फेसबुक में भी काम कर सकेंगे, या जो हम लोगों का फोकस है वो नेक्स्ट फेसबुक या नेक्स्ट गूगल या नेक्स्ट उन स्टार्टअप्स पे जो उस इस वक्त ट्रेजेक्टरी में जहाँ पे उन्हें प्रोडक्ट मार्केट फिट मिला है और वो ग्रोथ कर रहे हैं, उनके साथ आप काम कर सके होंगे। सो जो अगला दुनिया का फेसबुक है, जो अगला दुनिया का गूगल है, वो 4 वाइट मैन या 4 US सिटीजन्स एक कमरे में बैठ के नहीं बनाएंगे। वो एक लड़का होगा जो रहीमिया खान में होगा, एक लड़की होगी जो भावलपुर में होगी, एक गोरा होगा जो अमेरिका होगा, एक somebody that's some other religion, वो पूरी दुनिया में मिल के अब वो कंपनीज बनेंगी। और ये this is not the future, this is now and this is today. So आज GitLab को देख लें, Zapier को देख लें, these companies are InVision को देख लें, multi-billion-dollar companies, और पूरी companies in the cloud हैं। So that is the answer to the why, and now भी because opportune moment है। और पाकिस्तान के लिए देखें, अगर हम अपने टैलेंट को लेबल कर लेते हैं तो हमारा जो फॉरेक्स करेंसी का मसला है, फॉरेन एक्सचेंज का मसला है, इंपोर्ट्स हमारी ज़्यादा है, एक्सपोर्ट्स हमारी कम है, तो वी आर बेसिकली एक्सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर इन अ वे, राइट। सो हमारा यहाँ तक कि वो ट्रेड डेफिसिट भी खत्म हो जाता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी बैलेंस हो जाती है। तो दिस इज अ सॉल्यूशन टू सो मेनी थिंग्स, इट कैन हैव सच अ ह्यूज इम्पैक्ट। बस हमें आप जैसे लोग चाहिए जो ट्रेन करें और एम्पावर करें और लोगों को टेक में लेकर आए। राइट। सो हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस जमा हो गए। आई एम नॉट श्योर हाउ मच टाइम डू यू गाइस हैव, but I am going to ask a few questions that I think that I can see on on my list here. So Tuba Khan is asking that do you guys have any opportunities for testers, QA engineers?
currently? We do. So we don't have it open right now on our website, but agar if there's somebody that wants to apply as a QA tester, so yes, the answer is yes. Qasim@remotebase.com pe email kar dein and I'll get you in touch with the team. We do have an internal QA team, which is gender balanced. Okay, great. वो QA वाली होगी, I understand that. So there is another question coming from Arsalan Ali. So hi guys, considering startup survival and sustainability in Pakistan and working with Pakistani resources on hire, how are you planning your expansion and business consistency? I think ये सवाल ज़्यादा है कि हम scale कैसे करेंगे, is that? हाँ, scale करेंगे and how are you going to maintain, the kind of work ethic and quality that you have right now once you scale? So इसमें तो बहुत ज़्यादा credit तलहा को जाता है और हफ्सा को जाता है because हफ्सा also takes interviews और she's part of the hiring process. So हमारे पास जो shortlisted CVs होती है, not any random CV but CVs that are relevant to us. तो अगर React के engineer ढूंढ रहे तो सारी React की CVs होती है, उनमें से 3 से 6% हमारा acceptance rate है, which is very very low. हम choose ही like उन हीरो को करते हैं, but वो फिर भी इतने नहीं होते कि they can still work with वैली कंपनीज. फिर उनको बूट कैंप के थ्रू गुजारते हैं और फिर उस बूट कैंप के थ्रू हम लोग जो है गुजरने के बाद then you can work with our clients and with those companies. So expansion के यही plans है कि हमने intake को ज़्यादा करना है और जैसे जैसे हमारे processes और improve होते जाएंगे, so even people that are not the 3 to 6% but maybe the 10% then 15-20 उनको intake करके उनके अपने boot camps से गुजारते जाएं और उनको वहाँ से train करते जाएं और train करके आगे place करते जाएं. Right. So, can you tell me a bit about the boot camp? That what exactly do you guys teach? मतलब tech side, of course, you are teaching them tech, but other than tech, is there anything else that you focus on while preparing these people for remote work? हमारा जो boot camp है ना वो anybody that is part of the company और जो सुन रहा होगा is extremely chaotic. So हम लोग के वो नहीं होते, so we don't have like actual कोई हमने कोर्स वर्क बनाया हो या उस तरह से टीचिंग हो. हम लोग के इंटरनल टूल्स बन रहे होते हैं. कोई भी बंदा फ्रेश ग्रेजुएट भी आए या सीनियर भी आए, उसको एक 1-to-1 मेंटर असाइन हो जाता है, जिस तरह हफ्सा इज आल्सो अ मेंटर ऑफ अ कपल ऑफ पीपल. और डायरेक्टली उनको टास्क दे दिए जाते हैं. हमारे पास टास्क बने होते हैं कि जी ये टास्क करना है, ये टास्क करना है, ये टास्क करना है. जिस बंदे को प्रॉब्ली आइडिया भी नहीं होता कि रिएक्ट है क्या, अगर वो फ्रेश ग्रेजुएट है उसको भी बोल देते हैं कि तुमने ये रिएक्ट के अंदर ये लॉगिन का स्क्रीन बनाना है. अब वो कैसे बनाना है, यू नीड टू लर्न इट. और वो लर्न कैसे करता है, वो मेंटर से पूछता है मैं क्या करूं, मेंटर कह देता है ये करो. सो बहुत रियल वर्ल्ड और प्रैक्टिकल होता है और हमारी पूरी स्प्रिंट प्लानिंग होती है. सो एट द एंड ऑफ डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट 1 हफ्ते की स्प्रिंट होती है, 2 हफ्ते की स्प्रिंट होती है. उसके बाद आपने जो भी काम किया आपने वो डेमो करना है. वो उसको आप 0 से लेके लर्न करके बना के डेमो कैसे करेंगे. हम लिटरली बंदे को सिर्फ पानी में फेंक देते हैं एंड देन वी जस्ट हेल्प दैट पर्सन हिम और हर स्विम. और वो हेल्प कहाँ पे होती है, वो मेंटर्स हेल्प करते हैं. सो इस तरह से हमारे बूट कैंप्स फंक्शन करते हैं. बहुत रियल वर्ल्ड चैलेंजेस होते हैं. कुछ थोड़ा सा तलहा ने बनाया हुआ है सारा, जो गाइडलाइंस हैं, जो हमारे फ्रेमवर्क्स हैं जिन पे हम काम करते हैं, बट बहुत प्रैक्टिकलिटी फोकस्ड होता है. बिकॉज द आइडिया है कि उनको क्विकली अप टू स्पीड लेकर जाना है, क्योंकि क्लाइंट के पास भी तो जाके उसने यही काम करना है ना, टास्क कंप्लीट करने हैं. और सॉरी, सॉफ्ट स्किल्स का जो है आंसर यही है कि इस वक्त हफ्सा हमारे साथ बैठी हैं. सॉफ्ट स्किल्स के अंदर भी हम पानी में फेंक देते हैं. मुझे आज भी याद है, हमारे एक इंजीनियर था, उसको डायरेक्ट हमने कॉल में डाल दिया और वो कांप रहा था पहली दफ़ा क्लाइंट से कॉल लेते हुए. और उसकी आवाज़ जो है वो नर्वसनेस की वजह से जो है वो सही तरह बोल भी नहीं सक रहा था. आज उसको कहीं पे भी निकालें, किसी भी क्लाइंट से कम्युनिकेट कराए तो वो तबाही मचा देता है. वो इतनी तेज़ बोलता है और वो इतना ज़्यादा बोलता है कि क्लाइंट जो है उसके लिए मुश्किल हो रही है टू कीप अप विद व्हाट ही इज सेइंग. सो इसी तरह वेरी रियल वर्ल्ड सॉफ्ट स्किल चैलेंजेस भी, यहाँ तक कि कुछ लोगों की इंग्लिश भी नहीं अच्छी, उनको डायरेक्ट क्लाइंट के साथ इंटरव्यूज में हम डाल देते हैं और यू नो वी हेल्प देम आउट. बट पानी में फेंकना तो हम बार बार करते हैं. जैसे आज हमने अफसा को पुश किया है कि वो इस पानी में भी आए और इधर टॉक करे और इसके बाद 10,000 और टॉक्स करेगी, यू नो. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. तो फायदा, जब मैं इनिशियली यहाँ रिमोट बेस में आई थी तो मैं काफ़ी शाय पर्सन थी और मैं ज़्यादा बोलती नहीं थी और मतलब काफ़ी रिजर्व सी रहती थी. मुझे कोई मसला भी होता था तो
ये गलत है लेकिन चलें। मैं शुरू में नहीं बोलती थी, फिर तलहा मुझे हर वक्त इस बात पे पिच करते रहते थे एंड अल्टीमेटली उन्होंने मेरे से वो आइस ब्रेकिंग की और अब मतलब मुझसे सबके साथ में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो गई है और इट्स मोर ऑफ लाइक कि किसी को भी कोई कंपनी में मसला हो तो मुझे आगे खुद रीच आउट करते हैं लोग। और इस शुरू में हमारे क्लाइंट्स होते थे यूएस बेस्ड, तो उनके साथ भी शुरू में मेरी इतनी प्रोफिशिएंट इंग्लिश नहीं थी, तो मुझे उनके साथ भी काम करने के लिए तो काफ़ी मसला होता था। उनको भी थोड़े शुरू में ना मतलब मुझे एक टीम में शिफ्ट किया गया था जिसमें द ओनली डेवलपर जो थी यहाँ से वो मैं ही थी, तो मुझे उनके साथ कम्युनिकेशन इश्यूज आ रहे थे। तो फिर कासिम मीटिंग्स में आके शुरू में मुझे हेल्प आउट करते थे और फिर वो सारा लेके चलते थे। फिर अल्टीमेटली थोड़ा इम्प्रूव किया, थोड़ा पे अभी मैं इम्प्रूव कर रही हूँ, बट इट ऑलमोस्ट भी नहीं कि मुझे वाकई पानी में फेंक दिया था शुरू में, मुझे मीटिंग में कुछ समझ नहीं आ रही। फिर मैं कासिम के पास गई थी, मैंने कहा कासिम मुझे कुछ समझ नहीं आती, ना उन्हें मेरी आती है ना मुझे उनकी आती है। फिर हम उनके साथ लाइक शुरू में कासिम आते थे मीटिंग्स में और मेरे लिए सारी हेल्प बैकअप सारा वो कर रहे होते थे। राइट। मुझे ये बताइए कासिम and Talha, that you guys do not have an office here in Pakistan? Everybody is working remotely, or are there some people sitting in an office somewhere? सो हमारा है इस वक्त, मैं ऑफिस में बैठा हूँ। सो हम लोग रिमोट फर्स्ट है, ऑफिस इज जस्ट एन ऑप्शन। जिसका दिल करता है ऑफिस आ जाता है, जिसका दिल करता है नहीं आता। हफ्सा आई थिंक घर बैठी हुई है। तलहा जो है इस वक्त ओकलैंड लाइक सैन फ्रांसिस्को के पास बैठा हुआ है, सो ही इज हाफ वे अराउंड द वर्ल्ड राइट नाउ। सो ट्रूली रिमोट उस तरह। बट अगर वो सोशल एलिमेंट, रिमोट कल्चर, रिमोट वर्क की हमने बड़ी बात है कि रिमोट कल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल, एंड दैट्स प्रॉब्ली अ टॉपिक इन इट्स एंटायरिटी। बट हाँ, सो ऑफिस हमारा लाहौर में एक ऑफिस है जहाँ पे जिसका दिल करे वो आ सकता है, कोई किसी किस्म की कंपल्शन नहीं है। मुझे पता भी नहीं है कि इस वक्त 2 फ्लोर्स हैं हमारे, तो भी मुझे पता भी नहीं है कि दूसरे फ्लोर पे कौन आ जाया हुआ ऑफिस के, कौन नहीं आया हुआ। मीटिंग्स भी सारी हमारी रिमोट होती हैं। राइट, राइट। बिकॉज अगेन फैसिलिटीज का एक मसला है पाकिस्तान में, दैट पीपल, internet connectivity, electricity, there are a lot of issues that are there. And we also saw them when COVID came in and we had to put some classes online for code girls, that that it was a problem for people. So yeah, right. एक last question है मेरे पास for you guys, asking that yeah, so he's saying that your teammate mentioned that you guys do one-on-one meeting. So while you can do it, how do you empower your managers to behave in the same way as you guys do? सो बेसिकली जो हमारी 101s होती हैं वो तलहा और कासिम भी लेते हैं, लेकिन जो आप हर डेजिग्नेटेड टीम में होते हो ना, उसका टीम लीड भी आपके साथ अब 101s लेता है। लाइक एवरी मंथ वो 101s होती हैं। तो लाइक हमारे मैनेजर्स ऑलरेडी आई थिंक एम्पावर्ड हैं इतने कि वो खुद 101s लेते हैं। हर टीम No, लीड but अपनी टीम when लीड we talk about transfer of culture, how would you do that? Talha, maybe you would want to बाय take द it. वे, ये सॉरी मैं कट करूंगा आपको, लेकिन हिबा भी एक मैनेजर है और आई थिंक आप हिबा की भी इनसाइट्स ले सकती हैं इस मामले में कि वो किस तरह जो है वो मैनेज करती हैं। आई थिंक शी इज अ वेरी गुड मैनेजर, वेरी वेरी गुड मैनेजर। Hiba, would you like to contribute? Yeah, why not? So now that Bella has specifically mentioned, हाँ, so I think कि हफ्सा की आंसर को मैं थोड़ा सा elaborate कर देती हूँ। कि सिर्फ ये नहीं होता कि तलहा और कासिम 1-on-1s कर रहे होते हैं, टीम लीड्स के साथ भी 1-on-1s होते हैं। एंड मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहती हूँ यहाँ पे बिफोर आई आंसर योर क्वेश्चन कि सिर्फ मैं मैनेजर नहीं हूँ। सो वी हैव जो हमारी HR लीड है या जो HR मैनेजर है वो भी एक वुमेन ही है। सो नीलम है हमारी जो HR मैनेज करती हैं। हमारी जो सीनियर मोस्ट QA है नसीहा, वो भी एक वुमेन है। एंड नाउ वी आल्सो हैव अ प्रोजेक्ट जो एक सोलली जिनका फ्रंट एंड जो एक लड़की देख रही है सिद्रा। एंड देन ऑब्वियसली वी हैव हफ्सा एंड वी हैव अदर वुमेन जो कि नॉन टेक में बट वो सपोर्टिंग रोल्स में। सो ये सारी भी मैनेजर्स हैं और अपनी टीम के साथ ये खुद ही 1-on-1s करती हैं। सो नीलम फॉर एग्जांपल उनके अंडर अभी राइट नाउ आई थिंक 5-6 लोग हैं जो उनके साथ काम करते हैं। उनकी असिस्टेंट HR मैनेजर है आयशा, देन ही हैज साद। तो क्या होता है, वी हैव मंथली 1-on-1s
जिसमें तला और कासिम तो कर लेते हैं, पर उनके बाद उनसे पहले उनके टीम लीड्स करते हैं one-on-ones। एंड देन अगर हमारे कुछ इश्यूज हाईलाइट हुए या हमें कुछ मसले लगे जो कि हमें तला और कासिम को इमिडिएटली रिपोर्ट करने पड़ते हैं, तो टीम लीड्स उनको फ़ौरन बता देते हैं कि आप लोग अपने one-on-ones में ये चीज़ें देख लें। सो या आई थिंक वो जो आप कह रही हैं ना कि जो टॉप डाउन इफेक्ट है, दैट्स ऑलरेडी देयर, कि वो मैनेजमेंट से हम, एक तो हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग हायरार्की है नहीं कंपनी में, बिकॉज हम एक स्टार्टअप थे इनिशियली। अब शायद उतने स्टार्टअप नहीं है, बट आई थिंक तलहा और कासिम वुड ऑलवेज वांट टू बी अ स्टार्टअप, या कल्चर वुड आल्सो बी ऑलवेज लाइक अ स्टार्टअप। तो इतनी स्ट्रॉन्ग हायरार्की नहीं है कि हम, वी डोंट सी कासिम एज द CEO और वी डोंट सी तलहा एज द CTO। जब ये ऑफिस में भी होते हैं, हमारे साथ ही बैठे होते हैं, कोई मीटिंग भी होती है तो वो हमेशा ओपन डोर meetings होती हैं, anybody could enter, anybody could walk into any meeting। So I think the culture and जो भी जो effect है, that's already being transferred, और वो बहुत ही organically हो रहा है, हमें उसके लिए कुछ specially करना नहीं पड़ता। That's because how Talha and Qasim are। Right. Thank you, Hiba. Talha, Qasim, anyone would like to add to it? Talha should add a lot because I think Talha is 100 times better at this than I am। और Talha जो culture company को देता है और जो जितना power करता है वो मेरे से तो 10 times मैं सीख रहा हूँ अभी खुद। So I think Talha, you should answer this question। But like I said कि वो चीज मैंने अपने पहले 2 दिन में सीखी थी आपसे, और वो खैर चलिए ये तो चलता रहेगा वो। But I don't have anything to add to it in all fairness। मतलब हिबा ने बहुत अच्छा जवाब दिया, बहुत अच्छा जवाब दिया। Right. So I have a lot of questions right now. बहुत सारी comments वगैरह मैं देख रही हूँ, लेकिन I think we are out of time. Thank you so much, Hiba and Hafsa, for reaching out to me. Thank you so much, Qasim and Talha, for giving the time. What I can offer, the help that I can offer is that मैंने हिबा और हफ्सा को बताया था कि हमारे पास एंट्री लेवल अगर आप लोगों के पास कुछ पोजीशंस हों तो we can send them to our alumni at Code Girls so that they can apply। Again, these are not engineers, these are bootcamp trained people who you know, who are like toolsmiths basically। And then of course जो आपकी senior positions हैं उनके लिए, you know, I've already told Hiba and Hafsa that feel free to push them in Women in Tech PK, and if they need any help, you know, I'm happy to do that too। So thank you so much and good luck। Thank you, Faiza, so much। आखिरी चीज, how can we help you? Because it's not a one way वो। Yeah। No, what you guys are doing by adding more women to tech, that's help enough। Thank you so much। चले, thank you so much, Faiza। Thank you। Thank you, Pleasure Faiza। speaking Thank with you, Thank you। खुदा हाफिज। Thank you, Faiza। Thank जी you, हफ्सा। फाइजा, आई वाज ओपिनियन कि अगर आप अपना लाहौर विंग सेट करना चाहें वुमेन इन टेक का, तो वी कैन हेल्प यू इन दैट टू। कि अभी आपने पीछे मेंशन किया था कि कराची में है और पर्सनली कनेक्ट नहीं कर सकते, तो ये प्रॉब्लम तो हम आपके लिए सॉल्व कर सकते हैं आपकी कोलैबोरेशन के साथ। I'll definitely reach out to you for that। Thank you so much guys। Thank you। Thank you।